নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাক লৈ বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে পুনৰবাৰ অতি শেহতীয়াভাৱে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অমিত শ্বাহৰ তৰফৰ পৰা হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। অমিত শ্বাহৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে কোনো কাৰণতে বাতিল নহয় কা, আৰু কা সন্দৰ্ভত মুছলমানসকলক উদ্দেশ্যি অমিত শ্বাহৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে কোনো কাৰণতে মুছলমানসকল শংকিত হ'ব নালাগে আৰু কাও বাতিল নহয়। কি কৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কোনো কাৰণতে বাতিল নহয় কা, সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট কোনো কাৰণত বাতিল নহয়, শংকিত হ'ব নালাগে মুছলমান। কোনো কাৰণতে প্ৰত্যাহাৰ নহয় CAA। অসমৰ লগতে অন্য ৰাজ্যতো বলবৎ হ'ব সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট। কেৱল উত্তৰ পূবৰ বিশেষ মৰ্যাদা থকা ৰাজ্যত বলবৎ নহ'ব কা। ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ষষ্ঠ অনুসূচী থকা ৰাজ্যত বলবৎ নহয় কা। কা বিধি বলবতৰ পাছত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কা আৰু NRCৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই অমিত শ্বাহে কৈছে। কাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহ'ব বুলিও দৃঢ় ঘোষণা কৰিছে। সংবাদ এজেঞ্চি ANIৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কা বলবৎ হোৱাৰ পাছত বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। কা সন্দৰ্ভত কেইবাটাও বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান সংবাদ এজেঞ্চি ANIৰ তৰফত ANIত বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। মুছলমান লোকেও কাৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব, কোনো কাৰণতে বাতিল নহয় কা। কা বাতিল কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে আৰু শংকিত হ'ব নালাগে মুছলমানসকল। মুছলমানক উদ্দেশ্যিও মন্তব্য কৰিছে। কোনো কাৰণতে প্ৰত্যাহাৰ নহয় কা। আৰু কা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ এজেঞ্চি ANIৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত কেইবাটাও পূৰ্বে নকৰা বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ষষ্ঠ অনুসূচী থকা ৰাজ্যত বলবৎ নহয় কা, এয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। কা বিধি বলবৎ হোৱাৰ পাছত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। কা আৰু NRCৰ মাজত সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈছে। কাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহ'ব বুলিও দৃঢ় ঘোষণা কৰিছে অমিত শ্বাহে। সংবাদ এজেঞ্চি ANIৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ। কা সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে অপপ্ৰচাৰ চলোৱা অভিযোগ গৃহমন্ত্ৰীৰ। কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে কাৰ বিধি বলবৎ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিব। 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 2014 13 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদনৰ আৰম্ভণি হ'ব। মুছলমান লোকেও কাৰ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মুছলমান লোকসকলক শংকিত হ'ব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য আছে। আমি পোনে পোনে অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। एक और बात थी, वो एक तो गलतफहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए कि असम में CAA लागू होगा या नहीं होगा, और NRC और CAA ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर देखिए असम में जो NRC की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका CAA से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर 2 प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही CAA नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6 शेड्यूल में वो असम के कुछ, सॉरी, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहां नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू हो जाए। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ है, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं CAA की वजह से, जरा भी नहीं बदलेगा। हाँ। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर CAA नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6ठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। आपने जैसे CAA को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को
रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब हम एक और बात थी, वो एक तो गलतफहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए कि असम में सीएए लागू होगा या नहीं होगा, और एनआरसी और सीए ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर देखिए, असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर दो प्रकार के কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে, কাক লৈ শংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ANIৰ সৈতে হোৱা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত কেইবাটাও বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। পোন প্ৰথমবাৰলৈ কা বলবৎ হোৱাৰ পাছতে পোন প্ৰথমবাৰলৈ সৰ্ববৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। আমি পুনৰবাৰ অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য পুনৰবাৰ ফুল প্লেটত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। পুনৰবাৰ বক্তব্যটো কি কৈছিল এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ফুল প্লেট যোগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল পুনৰবাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কোনো কাৰণতে বাতিল নহয় চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, আৰু কাক লৈ শংকিত হ'ব নালাগে মুছলমানসকল, কোনো কাৰণতে প্ৰত্যাহাৰ নকৰে কা। অসমৰ লগতে অন্য ৰাজ্যতো বলবৎ হ'ব কা। কেৱল উত্তৰ পূবৰ বিশেষ মৰ্যাদা থকা ৰাজ্যতহে বলবৎ নহয় কা। ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ষষ্ঠ অনুসূচী থকা ৰাজ্যত বলবৎ নহ'ব কা। চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কা আৰু এনআৰচিৰ মাজত সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈছে। কাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহ'ব বুলিও দৃঢ় কেন্দ্ৰ চৰকাৰ। আৰু কা সন্দৰ্ভত বিৰোধী অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে কা বিধি বলবৎ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিব। 1947 পৰা 2014 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ অহা সকলো লোককে আদৰণি জনাইছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুছলমানসকলেও কা সন্দৰ্ভত আবেদন কৰিব পাৰিব। আমি পুনৰবাৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে, পুনৰবাৰ শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। एक और बात थी, वो एक तो गलतफहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए कि असम में सीएए लागू होगा या नहीं होगा, और एनआरसी और सीए ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर देखिए, असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर दो प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6th शेड्यूल में वो असम के कुछ, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहां नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू हो जाएगा। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ हैं, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीए की वजह से, जरा भी नहीं बदलेगा। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीए नहीं लागू होगा, और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6ठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं।
आपने जैसे सीए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब हम एक और बात थी, वो एक तो गलतफहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए कि असम में सीएए लागू होगा या नहीं होगा, और एनआरसी और सीए ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर देखिए, असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर दो प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6 शेड्यूल में वो असम के कुछ, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहां नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू हो जाएगा। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ हैं, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीए की वजह से, जरा भी नहीं बदलेगा। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीए नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6ठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। आपने जैसे सीए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई